हेलो एवरीवन, वेलकम टू नव क्लासेस। आई एम नवदीप कौर एंड आज आपके साथ मैं पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आपकी स्पेशल रिक्वेस्ट पे आई एम इनवाइटिंग माय वन ऑफ माय बेस्टेस्ट फ्रेंड्स सरिता देवी। सो वेलकम सरिता। Thank you so much, Navdeep. शी इज And असिस्टेंट प्रोफेसर एट दिल्ली यूनिवर्सिटी। हाँ जी। hello everyone. My name is Sarita Devi, and I am an assistant professor in Delhi School of Economics, Department of Commerce. हाँ, तो सरिता अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे आपको कि एमकॉम, फिर रिसर्च पेपर्स लिखने का और फिर उसके बाद पीएचडी, एमफिल करना और उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर तक की जो जर्नी है और उसके आगे किस तरीके से आप जा सकते हो, पूरी हायरार्की दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होती है, ये सब समझाएंगे। एंड हम लोग फिर लास्ट में इंटरव्यू का मॉक भी करेंगे कि किस तरीके से इंटरव्यू में क्वेश्चन किए जाते हैं। सो सरिता, अपनी जर्नी बताइए कि कैसे आपने स्टार्ट किया एंड यहाँ तक पहुंचे। Okay. We did MCOM together. I and Navdeep were friends during MCOM, right? So we were batchmates. So students, when I was pursuing my MCOM, I cleared NET GRF in the very first year of MCOM. And उसके बाद ही I was having the impression that I will soon become a professor in Delhi University. But as you people know, it's not very easy to become a professor in such a reputed university. So it definitely takes time, right? So when I was in AMCOM last semester, so I wrote a few papers under the guidance of one of my faculty member, and then that papers were just literature review. But yes, I learned about literature review in the AMCOM only, right? And after AMCOM, I cleared AMPhil entrance and I joined AMPhil program in the Delhi School of Economics itself. Then what happened is, while doing my MPhil and while claiming JRF, I started giving interviews in Delhi University. I registered myself in ad hoc panel and I started giving interviews. And many of our friends also started giving interviews. A few of them got selected, and a few of them were still uh, having challenges in life, like they were not getting selected in Delhi University. सो कुछ के साथ क्या हुआ कि कुछ ने प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ज्वाइन कर ली, कुछ ने पीएचडी स्टार्ट कर दिया, कुछ ने एमफिल स्टार्ट कर दिया. But I keep myself restricted to MPhil, and I kept on giving interviews in Delhi University itself. Then I realized that uh, what after MPhil? MPhil तो मेरी हो जाएगी, but what after MPhil? Whether I will be able to become professor, since I have not even cleared a single interview in Delhi University. So what after MPhil? So JRF तो आ रहा था, साथ में मेरी रिसर्च भी चल रही थी. माई पेरेंट्स एंड टीचर्स वर सजेस्टिंग मी कि तुम एमफिल पे फोकस करो, तुम रिसर्च पे फोकस करो, वाई यू आर वरिंग अबाउट योर जॉब. जॉब तो लग जाएगी, ठीक है. तो फिर बट आई वॉज अ लिटल, यू कैन से इम्पेशेंट इन दिस रिगार्ड कि नहीं, मुझे जॉब भी चाहिए एंड हाँ, आई कुछ ना वॉन्ट टू कुछ चलता बिकम. रहना चाहिए, साथ साथ होना चाहिए। यस, यस, यस. क्योंकि बहुत सारे फ्रेंड्स साथ में लग चुके थे ऑलरेडी. उन्होंने कॉलेजेस ज्वाइन कर लिए थे, बीइंग प्रोफेसर और गेस्ट लेक्चरर, राइट. सो एक स्टार्टिंग में हो जाता है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ जाती है कि यू शुड ऑल्सो इन कॉम्पिटेंस विद योर फ्रेंड्स, राइट. तो उसके बाद क्या हुआ कि I joined a private university, that is IP University in Delhi, being a guest lecturer. So I worked over there for 6 months. I delivered lectures. साथ में मेरी एमफिल भी चल रही थी. I was working on that as well. And उसके बाद soon after 6 months of my guest lecturership, I started giving interviews in a lot of private colleges, universities. Then I got selected in Galgodia's University. I joined that university, and for 1 year I worked over there, and that was also a very good experience over there, being a regular and permanent faculty, right? So then what happened is, then I again fed up with the private university structure कि नहीं, अब मुझे private में काम नहीं करना. Now I need to join some government institution.
तो फिर उसके बाद then I started giving interviews again in Delhi University, since Delhi University is the first name that comes to your mind when you want to become a professor or an assistant professor, right? So then I gave a lot of interviews over there. Then I got a call from Delhi School of Economics, Department of Commerce, right? Then I joined that without even thinking once. Suddenly I gave resignation in Galgotias University. Then I found it really amazing experience in Delhi University, Delhi School of Economics. You get a lot of work over there. You get a lot of exposure over there. Students are very much different over there. The thinking level of students, the analytical skills of students is very high as compared to the private institutions, private colleges. So it's really different experience. हम लोग स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको प्रोफेसर बनना है तो ये जर्नी एक्चुअली स्टार्ट होगी कहाँ से? किस लेवल से आपको स्टार्ट करनी होगी? प्रोफेसर तक कैसे पहुंचते हैं? अगर किसी को कुछ भी नहीं पता, देन हाउ दे शुड स्टार्ट? Yes. So the first step in this journey is some people join as a guest lecturer and some join as ad hoc or on contractual basis. ठीक है? So these two are different. So guest lecturer भी बहुत लोग करते हैं. जैसे suppose in one college they are delivering 4 to 5 lectures, in another college they are also delivering 6 to 7 lectures. इस तरीके से they earn quite good amount. But if you want to have really good exposure and experience as well, then it's better to start with the contractual or on ad hoc basis. ठीक है? एपीआई स्कोर में भी वो ऐड होता है ना, कॉन्ट्रैक्चुअल वाला, गेस्ट लेक्चरर वाला. Yes, if you want to have the experience score, अगर आप चाहते हो कि आपका स्कोर भी ऐड हो एक्सपीरियंस में, तो गेस्ट का कहीं भी काउंट नहीं होता. ओनली experience of contractual, that too for 4 months, consecutive 4 months is required, and if it is of 2 months or 3 months, that is also not counted, right? So 4 months के आपको 1 पॉइंट मिलता है आपको 4 months का 4 इन मंथ्स का. API स्कोर. नाइस. हम्म. ओके. तो उसके बाद आपका उसके बाद आप यू वेट फॉर द परमानेंट पोस्ट टू कम, राइट? एंड यू गिव इंटरव्यूज फॉर द परमानेंट पोस्ट. So since we know that since 5 or 6 years there are no permanent interviews going on in Delhi University, we are also waiting for getting permanent in Delhi University. So the wait is really long over there, but let's hope for the best. So उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो व्हेन यू क्लियर द इंटरव्यू फॉर परमानेंट. ठीक है? अब असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्राइटेरिया चेंज हो गया है. अर्लियर इट वाज नेट वाज द बेसिक मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर becoming an assistant professor in Delhi University, but now it has been converted into PhD. Now you need to be a PhD holder, completely declared. You should be a doctor for becoming an assistant professor in Delhi University on permanent basis. And your points should be minimum 60 points in colleges and 75 points in department, right? So this is the minimum API score for becoming an assistant professor. Yes. इसमें में काफी टाइम लग जाता होगा, है ना? क्योंकि अभी वैकेंसीज कम है, लेकिन उनको छोड़ना नहीं चाहिए. उनको एडहॉक में भी साथ साथ करते रहना चाहिए. Yes. 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 कम नहीं है, उसमें अमाउंट अच्छा मिलता है. Yes. आपको फुल स्केल मिलता है. 7th पे कमीशन का फुल स्केल आपको एडहॉक पे मिलता है. एंड फॉर गेस्ट लेक्चरर आल्सो यू रिसीव 1500 रुपीज फॉर 1 hour. एंड दैट इज अराउंड अबाउट बता सकते हैं ड्यू में. दूसरे कॉलेजेस में कम होता है, बट सिंस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ आईपी यूनिवर्सिटी एंड आल्सो सो दैट लर्नर कैन थिंक कि कौन सी प्राइवेट में कितना मिलता है और इसमें कितना. डेफिनेटली. अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो फिर आप व्हेन आई जॉइंड आईपी यूनिवर्सिटी तो मुझे पर आवर 500 रुपीज मिलता था. एंड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी दैट टाइम इट वाज 1000 रुपीज. सो यू कैन सी दैट इट इज टू फोल्ड. ठीक है? देयर इज अ डिफरेंस ऑफ टू फोल्ड एट दैट टाइम. नाउ दे आर पेइंग ऑलमोस्ट 800 to 900. दैट इज अगेन हाफ ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी. दिल्ली यूनिवर्सिटी इज पेइंग 1000 रुपीज पर आवर, राइट? And if I talk about the regular or permanent salary, ठीक है, जो कुछ प्राइवेट देते हैं, तो that varies from private college, one college to another college.
तो कुछ कॉलेजेस में तो आपको 25,000 भी देते हैं और कुछ कॉलेजेस में 40,000 भी देते हैं, कुछ में 60 भी मिलता है। एंड एज एंड व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस, रिसर्च पेपर, यू कंप्लीट योर पीएचडी, तो वो 70, 80, 90। आई हैव सीन पीपल जो प्राइवेट में भी 1 लाख, 1,50,000 भी कमा रहे हैं आफ्टर गेटिंग एक्सपीरियंस एंड आफ्टर कंप्लीटिंग देयर पीएचडीज। लेकिन इनिशियली आपको ज्यादा नहीं मिलता, 25,000, 40,000, 50,000 मैक्सिमम। ठीक और है, यहाँ बट देयर एडहॉक में यू गेट द फुल पे स्केल, जो अभी अक्टूबर से ही हमें मिलना स्टार्ट हुआ है, लास्ट अक्टूबर से ही। तो इट इज अराउंड 89,000, लेकिन वो आफ्टर डिडक्टिंग टैक्स एंड ऑल हमें ऑलमोस्ट 80,000 के करीब हमें मिलता है पर मंथ। सो यू कैन सी द डिफरेंस इन सैलरी एज वेल। थैंक यू सो मच। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो सबसे पहले लर्नर्स के माइंड में आता है कि हमें होगा क्या, क्या हम फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। ओके। यस। तो एमफिल में और पीएचडी के इंटरव्यू में, एमफिल में और आपके एडहॉक के जो इंटरव्यू होते हैं, इनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं लेवल का, टाइप ऑफ Yes, क्वेश्चन? yes, and definitely there is a lot of difference. जो एमफिल का इंटरव्यू होता है, सिंस आई हैव फेस्ड एमफिल इंटरव्यू एज वेल एज एंड द पीएचडी इंटरव्यू एज वेल, तो वहाँ पे द क्वेश्चंस आर मोर रिलेटेड टू योर रिसर्च, लाइक what kind of research you want to pursue, why you have chosen this topic, why you have chosen this area, what are the gaps in this particular area. तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, which sample you will choose, and which statistical tool you will use, how you will analyze the data, what could be the possible limitations, how you will collect the data. So these are the basic questions that the interviewer asks from you during MPhil interview. Okay. And if I talk about the normal interview for the lecturership, so that also varies from college to college and university to university. Like, what is the general, you can say general rule क्या है इसमें जो आपके interviews होते हैं, उसमें first they ask your area of specialization. Like if my area is marketing and finance, तो then they ask a particular subject from your area कि आपके area में कौन सा subject आपको सबसे ज्यादा पसंद है. Like in marketing, if I would mention the consumer behavior, suppose, तो consumer behavior में then they ask कि okay, tell me any topic in this subject. तो कोई टॉपिक आप बता दोगे, then they will start asking from that particular topic, like what are the theories of consumer behavior, who gave that theory, what is the relevance in the current world, or they also give you some situations कि if you have to sell Modi jacket in China, then what strategies you will follow. So these are some of the questions which were really asked by me in during some interviews, and some of the people got blank कि अब इनका क्या आंसर दें, क्या स्ट्रैटेजीज में अप्लाई करें. तो वो सब उसमें डील करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज ड्यूरिंग सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स, जो आपके सब्जेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, लाइक मेरा मार्केटिंग है, तो उसमें द इंटरव्यूअर कैन आस्क एनीथिंग, कैन में भी एनीथिंग सेल करने को आपको बोल सकता है, कुछ भी हाँ. एस्पेक्ट भी. अच्छा, तो Yes. अगर हम यही वाला क्वेश्चन ले, तो एक जस्ट हिंट कि किस टाइप से फेस करना पड़ेगा अगर हम यही इसी टाइप का क्वेश्चन लेके आपको चाइना में कुछ प्रोडक्ट सेल करना है या कहीं बाहर, तो वो कैसे सेल करेंगी? यू सेड जस्ट. Like, yes, like I have gave the answer of this in such a manner that Chinese people believe in Gandhian philosophy a lot. ठीक है, so Modi jackets are mostly made of khadi. So I connected the Modi jacket with khadi and then with the Gandhian philosophy, and then I will promote the Gandhian philosophy in China, and then I will be able to sell it in the Chinese market. So in this way I have tackled this question, and they were pretty satisfied with that. यस, उसका पहले आप ये देखो बैकग्राउंड क्या है, और उस बैकग्राउंड उनके Yeah. बैकग्राउंड के साथ हम अपनी डिजायर्स को अगर मैच कर दें, देन वी कैन सेल. वेरी नाइस आंसर. सो हायरार्की हो गया है. सो असिस्टेंट प्रोफेसर, और कुछ याद आ रहा है? One more thing I would like to add in this, कि this is one of the type which I have mentioned कि कुछ कॉलेजेस में इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, when there is a vacancy for a particular subject,
Then they do not ask from you कि what is your specialization. Then they ask subject जो जिसकी वहाँ पे vacancy है. Suppose if they are having the vacancy for management accounting, then they will start asking questions from management accounting without asking for your background. तो फिर उसमें क्या होता है, आपको सारे सब्जेक्ट्स की नॉलेज होनी चाहिए. इट्स नॉट दैट कि आपको सिर्फ अपना सब्जेक्ट पढ़ना है. You need to know the basics of each and every subject, so that if the interviewer is asking any question in random, then you can also answer it without अपना getting स्ट्रीम blanked. से रिलेटेड सारे पता होने चाहिए, बिकॉज़ हर Yes. जगह आपकी स्ट्रीम अवेलेबल नहीं होती, आपको सब कुछ पढ़ाना पड़ सकता है। लाइक अगर हम कॉमर्स में से हैं, मैनेजमेंट से हैं, तो वी शुड नो अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यस। Yes, if I tell about me, myself, my teaching, so till now I have taught almost 29 subjects. So अरे you वाह! can imagine ki how diverse teaching is. And every semester you get 2-3 new subjects to teach. So, and in private colleges, I got almost 5 to 6 subjects to teach in different, you can say, aspects. नाइस। अच्छा, तो सरिता, इस जर्नी में आपको क्या लगता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर इज़ गुड? हम पहले एक दिन एड हॉक पे तो लग जाएँ, वहाँ पे हम सैटिस्फाइड हो जाते हैं, चलो कुछ तो आ गया है, फिर आगे जर्नी बढ़ती ही रहेगी। एंड देन एड हॉक के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने में आपको क्या लगता है कितना टाइम लग सकता है? और इससे क्या घबराना चाहिए या चलते रहना चाहिए? देखो, इफ आई टॉक अबाउट दिल्ली यूनिवर्सिटी, तो मैंने आई हैव सीन पीपल हु आर स्टिल ऑन एडहॉक सिंस 12 इयर्स और 13 इयर्स, वो अभी भी एडहॉक पे ही हैं. और कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जिन्होंने 2 साल एडहॉक किया है और वो परमानेंट बन गए हैं. ठीक है, दैट डिपेंड्स. अब सपोज अगर आप मैं बात करती हूँ कि नॉट सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी बट बाकी हरियाणा में है जैसे, और यूपी में है, वहाँ पे एग्जाम्स होते हैं एचपीएससी एंड यूपीपीएससी. ठीक है, वो एग्जाम्स होते हैं जो कि परमानेंट असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए होते हैं. ठीक है, तो अगर आप उसमें डायरेक्ट आपका एंट्रेंस होता है, एंट्रेंस की वेटेज होती है 85% एंड 15% वेटेज इज फॉर इंटरव्यू, राइट. अगर आप इस तरीके के एग्जाम्स भी क्लियर कर लेते हैं साथ ही साथ while you are on ad hoc position, like some of my batchmates have already did it. ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप फिर जल्दी परमानेंट होने के चांसेस हो जाते हैं आपके. अगर आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी पे बैठे रहोगे तो आई डोंट थिंक कि इट विल बी गुड फॉर यू ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस, राइट. तो इसलिए आपको सारी तरह के एग्जाम्स देने चाहिए. लाइक आई गॉट मैरिड, आई हैव अ बेबी, तो आई डोंट थिंक ऑफ गोइंग एनीवेयर एल्स. माय फैमिली सेटल्ड ओवर हियर इन दिल्ली, तो आई डोंट थिंक ऑफ गोइंग इन हरियाणा और यूपी और इन बिहार. बट those friends who were like not married, so they gave that exams and they got selected, so they are working well over there. उनका जल्दी हो जाता है परमानेंट प्रोफेसर में, उनका जल्दी हो जाता है क्योंकि दिल्ली में वेटिंग बहुत ज़्यादा है। आप सोचिए, Yes. आप जा रहे हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, आपसे ज़्यादा डिग्री होल्डर लाइक पीएचडी होल्डर्स वहाँ पे होते हैं, तो डेफिनिटली उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, तो वो जल्दी प्रेफ़रेंस उनको मिलेगी। बट आपको उसके साथ बिल्कुल. मैच करके आगे जाना पड़ेगा और उसमें टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। बट हम्म. एडहोक में भी है, जैसे आपने बताया कि जो अमाउंट आपको मिल रहा है 80 लाख 80,000 एंड ऑल, तो वो भी कोई कम नहीं है। यू कैन गो विद दिस, है ना? तो इसके ऊपर भी रह। अच्छा, इसमें ये होता है कि 6 मंथ में दोबारा से देना पड़ता है, या जैसे अगर आपका डीएससी में है तो हाउ मच सिक्योरिटी यू हैव अबाउट द जॉब? There is very less security about the job. I will say there's no security at all. यस। So after 1 year, we need to give interview in departments, and after every 6 months, we need to give interviews in colleges. So since I'm in department, so we need to give interview after every year. So every year we have this like talwar latakti hai ki whether we will be able to crack interview this time or not. But yes, thoda sa if you have knowledge, you have good communication skills, you have experience, then definitely you will be able to crack it. यस। सो अगर कोई एकदम से न्यू इस लाइन में आ रहा है, तो उनको आप क्या-क्या सजेशंस देना चाहेंगी? अगर कोई न्यू इस लाइन में आ रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि फर्स्ट थिंग इज दैट यू मस्ट बी पैशनेट अबाउट टीचिंग.
बिकॉज अगर आप पैशनेट नहीं हो तो आफ्टर 1 year और 2 years यू विल स्टार्ट फीलिंग यार इतना पढ़ना पड़ता है, रोज पढ़ना पड़ता है, लेक्चर प्रिपेयर करने पड़ते हैं। तो आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल सेइंग दिस थिंग टू मी कि ऐसे रोज रोज कौन पढ़े, लेक्चर प्रिपेयर करना कितना बोरिंग है। तो डोंट कम इन दिस फील्ड। ठीक है, विद बिल्कुल। इन 2 years यू विल रियलाइज कि दिस इज नॉट योर एरिया, दिस इज नॉट योर, यू कैन से, प्रोफेशन। आप इसको छोड़ के कहीं और चले जाइए। तो फर्स्ट थिंग इज पैशनेट अबाउट टीचिंग, एंड सेकंड थिंग इज गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, which is very much important. If you have good communication skills, definitely you can deliver good lectures. Plus, you can communicate what you are intended to communicate. ठीक है, यस। अगर आपको यही नहीं पता होगा कि आपको कन्वर्ट कैसे करोगे अपने थॉट्स को वर्ड्स में, तो यू विल नेवर बी एबल टू बी अ गुड टीचर। ठीक है, तो वो बहुत जरूरी है। And third thing which I would like to suggest is, for clearing the interviews, you need to bring randomness in your answers. क्योंकि आपको randomly वो कुछ भी पूछ लेते हैं, and if you are not random enough, तो you will never be able to। क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है कि मुझे याद था लेकिन मैं उस टाइम जवाब नहीं दे पाया, या मैं उस टाइम जवाब नहीं दे पाई, बाहर निकलने के बाद मुझे याद आ गया था लेकिन मैं उस टाइम याद नहीं आया। तो ब्लैंक इफ होना होता है ना, वो नहीं होना चाहिए। वो नहीं होना चाहिए, और वो तभी होगा जब यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर बिकमिंग रेंडम। ठीक है, आप रेंडमनेस आपको लानी पड़ेगी अपने बिहेवियर में, कि एकदम से किसी ने कुछ भी पूछा तो यू आर एबल टू आंसर दैट। क्योंकि आई हैव सीन इंटरव्यू जहां पे 30 सेकेंड्स में आपको जज करते हैं, तो 30 सेकेंड्स में क्या ही आप बोल पाओगे, क्या ही वो पूछ पाएंगे। तो इफ यू आर नॉट रैंडम, यू विल बी ओवर देयर। ठीक है, कुछ भी नहीं आप कर पाओगे उस टाइम पे, एंड यस, किसी भी आपका सब्जेक्ट से पूछ सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, किसी भी सब्जेक्ट से पूछ सकते मोर थिंग इज, करंट अफेयर से भी बहुत कुछ पूछा जाता है आजकल, जैसे क्रिप्टो करेंसी है, या फिर आपका इंडिया इंडिया चाइना ट्रेड वॉर एंड योर यूएस चाइना ट्रेड वॉर। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं कि व्हाट इज योर से इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक। ठीक है, आपका क्या थॉट है, आपके क्या व्यूज हैं, वो आप हमें बताइए। हाउ इट इज इम्पैक्टिंग इंडियन मार्केट, हाउ इट इज इम्पैक्टिंग यूएस इकोनॉमी, इस तरीके से फ्यूचर क्या है इसका। अभी कोविड-19 के टाइम पे भी मुझसे एक क्वेश्चन पूछा गया था। आई वाज गिविंग इंटरव्यू फॉर डिपार्टमेंट ओनली, हैं। द रिपीट 1 year। ठीक है, तो उस टाइम पे मुझसे पूछा गया था कि हाउ द एजुकेशन सिस्टम हैज चेंज ड्यूरिंग कोविड-19। ठीक है, तो यू नीड टू रेगुलरली अपडेट योरसेल्फ कि क्या एजुकेशन सिस्टम में चेंज आया है, हाउ यू आर डिलीवरिंग लेक्चर्स नाउ, how the technology has transformed your lives nowadays। तो वो सब चीजें आपको एड ऑन करते रहना पड़ता है अपने नॉलेज में। हाँ, और इसमें आपने किस टाइप का आंसर दिया? एक्चुअली होता क्या है, लर्नर्स को क्वेश्चन पता चल जाते हैं, बट उनको यही हम्म नहीं पता लोगों ने आंसर क्या किया, वो सब बताते नहीं है जैसे। तो इफ दे गेट आइडिया कैन फ्रेम देयर आंसर्स। यस। हम्म तो आई हैव फ्रेम्ड इन सच अ मैनर दैट कि आई गेव द एग्जांपल ऑफ जूम क्लाउड मीटिंग्स। तो when lockdown started, so we downloaded Zoom app, right? And most of the students were coming on this platform only, so we were delivering lectures through this only। तो first I have learned कि ये Zoom कैसे काम करता है, कैसे lectures दिए जाते हैं इस पे। Although that was a short video and that is available on YouTube easily, but that was a new thing for us। ठीक है, यस। तो we were first to start the Zoom meetings, तो हमने start कर दी थी। एंड उसके बाद हमने ये देखा कि द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अपना माइक ऑफ कर देते हैं, वीडियो ऑफ कर देते हैं, एंड दे डू नॉट अटेंड क्लासेस प्रॉपर्ली। वो वर्चुअली तो होते हैं प्रेजेंट दिखाई लेकिन दे रहे हैं। वो प्रेजेंट नहीं होते हैं एक्चुअल में, राइट? तो व्हाट आई डिड वाज आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग सम एक्टिविटीज इन माय क्लासेस, कि सो दैट स्टूडेंट विल फाइंड इट वेरी मच इंटरेस्टिंग। लाइक मेरा मैनेजमेंट ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस ऑपरेशंस में उस टाइम पढ़ा रही थी, तो आई कम अप विद एक्टिविटीज लाइक कि सीईओ ऑफ अ फ्यू कंपनीज, मैं उसकी स्लाइड दिखाती थी, फोटो दिखाती थी, ये किस कंपनी का सीईओ है एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन, और मैं लोगो दिखाती थी कंपनीज के कि इस कंपनी का नाम क्या है, इसका टैग लाइन क्या है, इसका ब्रांड वैल्यू क्या है। तो सो दैट द स्टूडेंट कैन लर्न ऑल्सो
प्लस दे विल फाइंड द क्लास इंटरेस्टिंग। केस स्टडीज में बहुत ज्यादा उस टाइम पे पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था, सो दैट स्टूडेंट्स विल लर्न थ्रू केस स्टडी एंड दे विल अप्लाई इट इन देयर लाइफ एज वेल। तो इस तरीके से आई हैव चेंज्ड इट। अच्छा, एक और लास्ट की तरफ जा रहे हैं हम। तो मुझे ये पूछना है कि अब हम लोग जैसे डीयू के हैं, तो हम जब जाते हैं तो वो माहौल मिलता है हमें, हमारे ही टीचर मिलते हैं जिनसे हम इंटरेक्ट करते हैं ना। इफ स्टूडेंट्स फ्रॉम आउटसाइड, लाइक आउटसाइड से वो डीयू में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, सो दे हैव कि वहाँ पे जरूर कुछ पीछे से सेटिंग होती है, ये होता है, बट क्या वहाँ पे किस बेसिस पे हम आगे जा सकते हैं? क्या आउटसाइडर्स के लिए भी स्कोप है आगे जाने का डीयू जैसे यूनिवर्सिटीज में? yes, there is scope for outsiders as well, but मैं कहूँगी इतना नहीं है जितना ड्यू के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन कम है, लेकिन है। If you are extraordinary, like I have seen a lot of teachers, जो हमारे खुद के टीचर्स थे, हंसराज में से मैंने एमकॉम किया है, तो हंसराज में जो हमारे टीचर्स थे, तो कुछ टीचर्स हरियाणा के थे वहाँ पे। एंड व्हेन आई आस्क्ड दैट मैम कि मैम आपका सिलेक्शन यहाँ पे कैसे हुआ, शी इज परमानेंट ओवर देयर, शी इज एसोसिएट प्रोफेसर ओवर देयर, तो शी सेड कि मेरा रिसर्च पेपर ना विले में पब्लिश हुआ था। विले इज अ वेरी गुड पब्लिशिंग हाउस, ठीक है, तो विले जर्नल में उनका पेपर पब्लिश हुआ था एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट पब्लिकेशन शी गॉट सेलेक्टेड। एंड वन मोर थिंग इज, कहती मुझे 2 जगह बेस्ट पेपर अवार्ड भी मिला था। So she said my research plays a lot of role in getting me placed in Delhi University. So you don't underestimate the role of research. Research बहुत ज़्यादा important है. And one thing I would like to suggest to you people is research और job साथ में जब चलती है तो you are not able to justify your research. नहीं हो पाता. People complete their PhD with job, people complete their MPhil with job, but you will not be able to justify it. उतना बेसिक Justify अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल पाएगी उन चीजों के, इन डेप्थ में हाँ, अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है आपको, लेकिन जो आप फुल टाइम रिसर्च में अगर आप टाइम डिवोट कर रहे हो, तो वो आपका टाइम कहीं न कहीं डिवाइड हो जाता है। ठीक है, जहाँ 4 साल आप फुल्ली पीएचडी में लगा रहे हो, वहाँ 4 साल साथ में आप जॉब में भी लगा रहे हो, तो आपका ऑटोमेटिकली टाइम डिवाइड हो जाता है और आपको स्पेशलाइजेशन उतनी नहीं मिल पाती जितनी मिलनी चाहिए है। तो इफ यू देयर इज लॉट ऑफ स्कोप इन रिसर्च फील्ड एज वेल। आप रिसर्च एनालिस्ट बन सकते हो, आप रिसर्चर बन सकते हो किसी अच्छी कंपनी में। आजकल तो अगर इफ यू नो द रिसर्च टूल्स एज वेल, स्टैटिस्टिकल टूल्स आपको बहुत आते हैं, आर सॉफ्टवेयर आता है, मॉस आता है, तो यू कैन जॉइन सम गुड कंपनी। आपको वो भी बहुत अच्छा पैकेज देते हैं, 1 लाख 2 लाख महीने का दे आर पेइंग, ठीक है, लेकिन आपको वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से आने चाहिए उसके लिए। अब इनको सीखने हो तो कहाँ से सीखेंगे? अपने पीएचडी एमफिल के थ्रू या कोई और सोर्स भी है? अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखने हैं तो आप एक बार बेसिक प्रमाइस यूट्यूब से ले लीजिए। बेसिक प्रमाइस, ठीक है, कि बिगिनर्स के लिए यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं कि आर कैसे सीखें, आर इम्प्लीमेंट कैसे करें। उसके बाद बुक्स आती हैं पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर्स की, यू नीड टू रीड दोज बुक्स, और उसमें एप्लीकेशन भी दी होती है कि सॉफ्टवेयर ये अप्लाई कैसे करना है। दे ऑल्सो गेट सम सीडीज, उसके साथ या सीडीज भी सीडी आती होती हैं। है? हाँ, हाँ, तो वो सीडी आप किस तरीके से रन करके, उसमें सारा डेटा होता है टू एनालाइज, ठीक है, सॉफ्टवेयर आप रन करके देखते हो, पर्टिकुलर अप्लाई करते हो सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है वो सब उस बुक में मेंशन होता है। हर एक सॉफ्टवेयर की अलग से बुक आती है, लाइक मल्टीवेरिएट एनालिसिस की अलग से बुक्स होती हैं, आर स्क्वायर की अलग से बुक होती हैं, इस तरीके से। एंड देयर आर आल्सो कोर्सेज व्हिच आर रियली कॉस्टली ऑनलाइन, तो वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं, लेकिन इफ यू आर रियली थिंकिंग ऑफ गोइंग इन दिस पर्टिकुलर फील्ड, तो वो आप कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, आपको स्कोप लगता है, तो वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सही था, एक बार लास्ट में हम लोग बस ये देख लेते हैं कि कौन कौन से किस किस टाइम पीरियड पे निकलते हैं फॉर्म्स, लाइक एडहॉक के किस टाइम पीरियड पे निकलते हैं, पीएचडी के और ये एमफिल पीएचडी के, ये सब टाइम पीरियड चेक कर लेते हैं सो दैट दे कैन गो थ्रू वेबसाइट्स। और क्या इनको वेबसाइट्स के थ्रू मिलेगा, कॉलेजेस की या फिर डिपार्टमेंट की या डीयू की खुद की वेबसाइट्स, कहाँ पे इनको चेक करते रहना चाहिए? ठीक है, ठीक है।
सो इफ आई टॉक अबाउट द फॉर्म्स डेट्स, तो आपका एडहॉक पैनल का फॉर्म निकलता है अप्रैल टू मई के बीच में, ठीक है, जो आपका ईयरली निकलता है, ईयरली, ठीक है, वो अप्रैल टू मई के बीच में निकलता है एंड जून जुलाई तक वो फाइनलाइज होके अपलोड हो जाता है ऑन डिपार्टमेंट वेबसाइट, ठीक है, डिपार्टमेंट मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे, ठीक है, commerce.du.ac.in, ठीक है, उस पे वो अपलोड हो जाता है, यू कैन चेक इन दैट। तो आपको अप्रैल मई में वो फॉर्म फिल करना होता है, राइट, उसका 15 या 20 दिन का ही टाइम देता है फिल करने के लिए, ज्यादा टाइम उसके लिए नहीं दिया जाता, तो यू नीड टू रेगुलरली चेक। और उसके बाद निकलता है सप्लीमेंट्री पैनल। तो सप्लीमेंट्री पैनल आपका निकलता है ऑलमोस्ट अगस्त सितंबर के टाइम पे, ठीक है। तो उसमें जिन लोगों का जैसे जून जुलाई में सेशन खत्म हुआ होता है, जैसे सपोज मैंने एमकॉम खत्म की है जून जुलाई में, तो दे गेट अ चांस टू फिल दैट सप्लीमेंट्री पैनल, क्योंकि वो मई वाला तो फिल नहीं कर पाए, तो वो ये वाला फिल कर सकते हैं, सितंबर वाला। तो उस टाइम पे भी 15 दिन के लिए ऑलमोस्ट टाइम मिलता है, तो यू कैन फिल दैट फॉर्म, राइट। और उसके बाद आपका फिर उसके बाद उन्होंने अलग से जो ईयरली पैनल मिलता है जून जुलाई वाला, उसके बाद वो कंटिन्यू कर सकते हैं उसमें अप्लाई करना, तो लेकिन हर साल आपको अप्लाई करना पड़ेगा, यू कैन नॉट स्किप दैट, हाँ, राइट। अप्लाई करना पड़ेगा। और वो गेस्ट लेक्चरर के लिए भी जरूरी है, गेस्ट लेक्चरर के लिए भी और एडहॉक के लिए भी, दोनों के लिए कंपलसरी है वो। अच्छा, जो दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें तो एडहॉक नहीं होता है, फिर वो किस बेसिस पे एंट्री होती है? वहां पे 2 साल का प्रोबेशन होता है इन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस, मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज, 2 साल का प्रोबेशन होता है, जिसमें अगर उन्हें आपकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं लगती तो वो आपको निकाल सकते हैं। ओके। यस, लेकिन उसके बाद आप वहां पे रेगुलर हो जाते हो, और रेगुलर होने के बाद भी प्राइवेट इज प्राइवेट, वो जब चाहे वो आपको निकाल सकते हैं, लेकिन वो 2 साल तक तो दे हैव द चांस कि यू हैव नॉट परफॉर्म्ड वेल, यू हैव नॉट डन दिस एक्टिविटी प्रॉपर्ली, तो वो उस तरीके से आपने पढ़ाया नहीं ढंग से, तो इस तरीके से आपको निकाल सकते, लेकिन 2 साल के बाद आपको कम चांस होते हैं दैट वो निकालते हैं। तो उसके बारे में उनकी वेबसाइट्स पे पता चल जाता है कि कब वैकेंसीज आई हैं? व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि मैं हर साल मार्च अप्रैल के टाइम पे मैं सीवी भेजना स्टार्ट कर देती थी प्राइवेट कॉलेजेस के ईमेल आईडीज पे, ठीक है, वहां पे सीवी भेज देते थे, और एक बार फिर मई जून में भी भेज देते हैं, क्योंकि उनकी रिक्रूटमेंट्स होती हैं जुलाई के टाइम पे, मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस रिक्रूट ड्यूरिंग जून जुलाई, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो जाता है जुलाई अगस्त में, ठीक है, तो उस टाइम पे वो रिक्रूट करते हैं। तो इस टाइम थोड़ा फ्रीक्वेंटली हर 15 दिन में, हर 20 दिन में आप वहां पे सीवी भेजते रहो, विद अपडेटेड सीवी होना चाहिए, जिसमें बहुत अच्छे से आपने सारी डिटेल्स अपनी लिखी हुई हो, ठीक है, तो वो आप रेगुलरली भेजते रहें। इफ यू हैव गुड क्वालिफिकेशंस, यू हैव गुड थिंग्स मेंशन्ड इन योर सीवी, तो डेफिनेटली कॉल आता है, तो मेरे को मोस्टली जगह से कॉल आ जाता था, और इस तरीके से आप कर सकते हो। अच्छा, और अब एपीआई स्कोर को और सीवी को अच्छा बनाने के लिए क्या-क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं? आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के मार्क्स, रिसर्च पेपर्स और एक्सपीरियंस, सो ये सब? आपका स्टार्ट होता है ग्रेजुएशन के स्कोर से, ग्रेजुएशन स्कोर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। उसका भी एपीआई स्कोर में आता है काउंट। तो ग्रेजुएशन का स्कोर जरूरी है अच्छा होना, पोस्ट ग्रेजुएशन का जरूरी है, आपका फिर नेट जेआरएफ होना जरूरी है, जेआरएफ के अलग से पॉइंट्स होते हैं, नेट के अलग से पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एमफिल, जो कि अभी स्टेटस क्लियर नहीं है कि स्क्रैप हुई है नहीं हुई है, तो अभी कुछ टाइम बाद उसका स्टेटस क्लियर हो जाएगा। एमफिल के भी अभी पॉइंट्स हैं, तो उसके भी मार्क्स एड ऑन होते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च के भी पॉइंट्स होते हैं। रिसर्च आपका पीयर रिव्यूड होना चाहिए मिनिमम पॉइंट्स होने के लिए, और या फिर यूजीसी केयर की लिस्ट है उसमें आपका होना चाहिए, ठीक है, तो तब आपके मार्क्स काउंट होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। और अगर आपका एबीडीसी जर्नल्स में है तो उसके आपको एडिशनल एज मिलती है ड्यूरिंग इंटरव्यूज। मार्क्स तो उसके सेम होते हैं एपीआई में, लेकिन उनको प्रेफरेंस देते हैं इंटरव्यू के टाइम पे, बिकॉज दीज आर द जर्नल्स जिसमें पेपर पब्लिश कराना बहुत आसान नहीं होता, एबीडीसी जर्नल्स, ठीक है। तो इस तरीके से आपको फिर उसके बाद पीएचडी के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, और पीएचडी करना तो आपके लिए एक तरीके से मैंडेटरी है इफ यू वांट टू परस्यू दिस फील्ड। चलो, थैंक यू सो मच। एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स होते हैं।
एक्सपीरियंस के भी पॉइंट्स होते हैं, हाँ। एक्सपीरियंस के 6 मंथ, अभी आपने मेरे को बताया 4 मंथ के 1 पॉइंट, तो वो अब हाँ 4 months का। हाँ, हम्म। ठीक है। चलो, थैंक यू सो मच सरिता, एंड बहुत अच्छा लगा आपके साथ पूरे डाइवर्स फील्ड्स को हमने समझा, क्योंकि आपको डिफरेंट एक्सपीरियंस है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का भी और दिल्ली यूनिवर्सिटीज का भी, और रिसर्च पेपर्स भी अभी तक आप लिख चुके हो, अभी तक आई थिंक 10 से ज्यादा हो गए होंगे। यस यस काफी तो, कितने? इट्स 12। 12, हाँ, क्योंकि मेरे साथ ही कर लिए थे 5 to 6, तो जब मैं हम लोग साथ थे तभी हो गए थे, उसके बाद तो काफी स्कोर इंक्रीज हो But गया। now I'm trying to get published in very good journals, so that is taking time. वहाँ पे आपको अपडेट करने में 1 साल 2 साल लगता रहता है। ओके, चलो ये बहुत हम्म। अच्छा। हाँ, एबीडीसी वाले जो जर्नल्स हैं आपके यूजीसी केयर लिस्ट में मिल जाते हैं, सो उसमें पब्लिश करने के एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलती है। और जैसे इन्होंने बताया कि अगर आप पीछे से बैकग्राउंड काफी अच्छा है, आप ऑन द स्पॉट किसी भी बात को क्लैरिफाई कर सकते हो उनके साथ इंटरव्यू में, ऑन द स्पॉट आप अच्छे से डील कर सकते हो, और आपका बैकग्राउंड जैसे कि रिसर्च पेपर्स लिखा है, कुछ बेस्ट किया है अपनी टीचिंग एरिया में और रिसर्च एरिया में, तो आपको ज्यादा अच्छे से प्रेफरेंस मिल सकती है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के हो। अगर आप में हुनर है तो आप डेफिनेटली आगे जा सकते हैं। सो एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? Yes, I want to share just one thing, that knowledge brings confidence. People used to say that knowledge brings success, but I will say knowledge brings confidence, and if you are confident, you will definitely achieve success in your life. So all the best to everyone. Do good in whatever field you are doing. ठीक है? Try to achieve everything what you want, and all the very best. And stay safe, stay healthy during this time. Thank you so much, and dream, believe, act and achieve. Stay blessed and have a nice day. Thank you, Navdeep. Bye bye. थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच इतना टाइम देने के लिए। It was definitely a good experience for me as well. थैंक यू।